graduate from International Management Institute, which is in Belgium. He has done his post graduation in commerce from Mumbai University. So only Mumbai University ही एक commonality है between Rishi Nanda and most of us. Otherwise, we won't be able to reach this guy so quickly. And he also holds a diploma in human resource management, public relations, and advertising. And there is no room for doubt. I totally feel that because of this education qualification, this guy can connect with powerful personalities such as VP, CEOs, and founders and TEDx speakers of different industries. He has already tapped more than 25 industries, 125 plus you can say corporates. Employees की बात नहीं कर रहे हैं, participants की बात नहीं कर रहे हैं. If we talk about participants, it will go 20,000 plus. But he has tabbed 1 plus 20 plus 125 corporates as well as I think more than 50 plus cities of India. He is a interfaith speaker, interfaith facilitator on ancient Indian mythology, and his some very powerful and high paid sessions are Har Har Mahadev, lessons from Hanumana, then Leelas of Ram. There are some leadership lessons from Indian epics. He is also author of a book called Break the Chakravyuh, must read book for all the industry leaders. Even I have, because even I am one of the industry leaders. Yeah. But I recommend must read if you are an industry leader. And last but not the least, you must also listen to his podcast, which is a renowned podcast on Saregama Karwa, titled as Mahabharat ki kahani, Rishi ki kahani. Amazing stuff, amazing stuff. But today we have this Rishi Nanda, the spiritualist, this big powerful personality with us on live. So let's start this spiritual travel with Rishi today, and let's try to invoke this divine Shaktis within us. Yes, Rishi, welcome to the Wiki Maharashtra Wellness and Wellbeing platform, and it's I'm very much grateful, and I have this gratitude that you are with us. Thank you so And much. let's start this Durga within us topic. And So, my just I very like to thank first question. I'll just like to thank Vicky, for this opportunity that you have given. And to be honest, you're very gracious with your words, for introducing me. Thank you so much. Just one thing, glory to the Almighty, and yeah, thank you so much. Yeah. Please tell me. Yes, yes. All the words, ladies, here, all the words which I said, it's pure truth. And as I said, that you must read his book because I have his book, and that's why I'm saying all the words are truth. It's just, divine grace. ये सब इन लोग बोलते रहते हैं that it's divine grace, but somewhere it is their own hard work and their own wisdoms which they are trying to put it into the book so that we can read and grasp and absorb those knowledge in a very, you can say, in a very effective and cost-effective methods. Okay. Now, Rishi, coming back Yeah. to Durga within us. Cool. So, Rishi, in our life, in our life, like women's के life में and also in मनुष्य आत्माओं के life में, uh, we know that Saraswati is for knowledge, Lakshmi is for wealth, yeah, Annapurna is for food and nutrition and all. What Durga Ma resembles? Is there any significance of Durga Ma in this 21st century of women's? Yeah. Okay, fair enough. So first, I'd just like to clear, am I audible? Because this thing, I think someone said Awesome. that You I'm are perfectly audible. Very clear. Am I audible? yeah, because there was a comment that I was not clear, so I checked. Okay. So Oh, first, let me highlight how I got introduced to, the concept of Durga within me. Coincidentally, it was because of my son, to be honest, तो एक बार my son is like he's 7 years old and 2 साल पहले वो मेरे पास आया था और उन्होंने मुझे पूछा कि पापा आपके ख्याल से सबसे strongest God कौन है? And to be honest, I would like to seek apology before I say this answer.
हमको बचपन से है ना, हमको जैसे हो सकता है इंडिया में, हो सकता है मुझे हो, हमेशा हमको शिव जी की कहानियां सुनाई जाती है, विष्णु भगवान की कहानियां सुनाई जाती है, राम जी की कहानियां सुनाई जाती है, कृष्ण भगवान की कहानियां सुनाई जाती है, परशुराम जी की कहानियां सुनाई जाती है, माता की कहानियां सुनाई जाती है, बट नॉट टू द एक्सटेंट दैट द अदर मेल गॉड स्पोकन अबाउट। तो यहाँ पर फिर जो मेरे मन में आया, तो आई वाज लाइक You just keep the mic थोड़ा सा is it better closer. now? Now is it Awesome. better? Okay. Yeah, So I perfect. said के शिव जी, सबसे स्ट्रॉन्ग शिव जी या विष्णु जी, ये दोनों ही मुझे लगते हैं। तो देन माय सन, अब ये जो उसने मुझे कहा ना, मुझे लगता है वो एक बेटा ही अपने फादर से तो बात कर सकता है। वो तो पापा पूरी दुनिया को समझाते हो, सिखाते हो, और आपको खुद को ही नहीं पता है। तो आई सेड ओके, कौन है फिर? तो ही इज लाइक, अरे आपने तो मुझे कहा था दुर्गा माता। मैंने कब कहा दुर्गा माता? बोलता है, अरे आपने तो मुझे बोला था एक बार कि दुर्गा माता को जो है जो शस्त्र मिले, जो अस्त्र मिले, वो सब देवी देवताओं ने दिए, और सब देवताओं ने दिए, सॉरी नॉट इवन देवी, सब देवताओं ने उन्हें दिए। वो कहते हैं कि सोर्ड जो था वो गणपति बापा ने दिया, त्रिशूल जो है वो शिवजी ने दिया, स्पीयर जो है वो अग्नि देवता ने दिया, चक्र जो है वो विष्णु भगवान ने दिया, थंडर बोल्ट जो वज्र है वो उनको इंद्र देवता ने दिया, बो एंड एरो जो है उनको वायु देवता ने दिया, जो गदा था वहां पे विश्वकर्मा ने दिया, और उनके पास जो लोटस है ब्रह्म देवता ने दिया, शंख जो है उनको वरुण देवता ने दिया। बोलते ये सब मिलाकर अब उनके पास है ना, शिव जी के पास तो त्रिशूल है, चक्र तो विष्णु के पास है, बट ये दोनों किसके पास है? Mela, you are absolutely right. And that moment I realized that, probably, a couple of years back, I realized that even I'm reading Indian epics from a, what do you call, from a male perspective. I never paid attention to the female perspective. That was the moment, my realization, probably I'm reading it wrong. और मेरे बेटे ने मुझे सही बोला, जबकि कहानी मैंने उन्हें बताई थी, पर मेरे ध्यान से ये निकल गया। अभी coming back to your question, what does it stand for? तो अगर आप देखेंगे, जैसे इंडियन एपिक्स में हम देखते हैं, या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हम देखते हैं कि हर एक गॉड और गॉडेसेस का ना एक पर्टिकुलर उनके पास शक्ति होती है, एक पावर होता है। करेक्ट? जैसे आपने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि अन्नपूर्णा के पास खाने का होता है, तो दुर्गा माता जो है, वो शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, ओके, वो पावर को रिप्रेजेंट करती है। अब इनका ना, I'll just take 1 or 2 minutes just to set the context how the birth of Durga Mata, and then probably we all will understand, and then 3 we minutes can have a nice conversation on that. Thank you, you're so gracious. 3 minutes, so my time starts now. तो एक महिषासुर करके एक दानव थे, एक राक्षस, डीमन थे, और उनके ना हमेशा खराब लगता था कि गॉड्स और उनके बीच में, डीमंस के बीच में हमेशा फाइट होती थी, और हमेशा इनवेरिएबली गॉड्स जीतते थे। तो वो अपने पिताजी को कहते हैं, जो राम उनके पिताजी थे, जो महर्षि कश्यप के पुत्र थे, कि हमेशा गॉड क्यों जीतते, हमेशा ये देवता क्यों जीतते, हम क्यों नहीं जीतते? तो वो कहते हैं कि उनको ना भगवान का आशीर्वाद है, तो इसके लिए वो जीतते। अब ये महिषासुर जो था, उनके मन में बात रह जाती है। वो कहते हैं क्योंकि उनके पास भगवान का आशीर्वाद है, हम भी ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, तो हमें भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो वो घोर तपस्या करते हैं ब्रह्मा देवता की, और ब्रह्म देवता जब बड़े खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, और उनको दर्शन देते हैं, और फिर महिषासुर कहते हैं कि मुझे आप अमर बना दो, मुझे अमर कर दो, इमॉर्टल। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हमको देना अलाउड नहीं है, तो बाकी कुछ मांग लो, क्योंकि तुम्हारा जन्म हुआ तो मरण भी होगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो तुम कुछ और वरदान मांगो। अभी महिषासुर जो था वो बड़े ध्यान से, महिषासुर जो था बड़े ध्यान से सोचता, और फिर कहता अच्छा ठीक है, काम करो, मुझे अब ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई भी आदमी, पुरुष और कोई भी भगवान मेरा वध नहीं कर सकता, मुझे ऐसा वरदान दो। अब उन्हें लगा कि औरत को तो मैं ही मार दूंगा, अगर आदमी नहीं मार सकता है, भगवान नहीं मार सकता, तो औरत क्या मुझे मारेगी? और किधर ना किधर आप कभी भी देखेंगे इंडियन एपिक्स में ना, तो भगवान जब भी कोई वरदान देते, कोई ना कोई लूपहोल छोड़ देते, वो लूपहोल की वजह से फिर जाके वो दानव का वध होता है, वो राक्षस का वध होता है। तो यहाँ पे उन्हें कहते हैं ठीक है, तथास्तु, अब वो भी खुश हो जाते हैं। एंड देन he actually goes across earth and he starts killing people, जो भी उनका वध करते थे। अब जिसकी वजह से इंद्र देवता वो बड़े परेशान हो जाते, कहते हैं अरे तो मेरे दरबार में आ जाएगा, अमरावती में आ जाएंगे, मेरे पूरे पैलेस को ले लेंगे, इंद्र के दरबार को ले लेंगे, स्वर्ग को ले लेंगे। तो सब देवता भगवान उन पे आक्रमण करते हैं, और सब भगवान हार जाते हैं। मतलब विष्णु का जो चक्र है वो भी रिबाउंड चला जाता है, कोई भी, वो वज्र जो होता है इंद्र का, वो भी उनको नहीं उनको हर्ट कर पाता है। अब देवता भी परेशान, भगवान भी परेशान, ये अब हो क्या रहे, अब इनका हम कैसे इसको कैसे इसका वध करें, बिकॉज अभी ये ही इज एज गुड एज इमॉर्टल, वी कैन नॉट किल हिम, वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू किल हिम, व्हाट डू वी डू? अब वहां पर जो ट्रिनिटी है, जो हमारी जो ट्रिनिटी कहा जाता है, ब्रह्मा
विष्णु और महेश, वो लोग फिर अपनी आंखें बंद करते हैं और अबे जितने भी देवी देवता होते हैं सबको कहते हैं कि आंखें बंद करो, मेडिटेट करो और फोकस करो। और गंगा के पानी के थ्रू उनके वहां पर एक उनके वहां पे एक इनविजिबल सोल आती है जिसमें से बहुत लाइट निकलती है। शिव जी जो है उसको सर देते हैं, विष्णु भगवान शरीर और हाथ देते हैं, ब्रह्म देवता उन्हें पैर देते हैं, और तब जाकर वहां पर जो है ना उन्हें वो औरत का जन्म होता है, और वो औरत होती है दुर्गा, वो होती है दुर्गा। अब जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, अब यहाँ पर इनको था कि अब इस औरत ने जाकर अब इनको वध करना है महिषासुर का, तो इसके लिए अलग अलग भगवान जो आके ना अपने बेस्ट ऑफ वेपन्स उनको दे देते हैं। अगर अभी आप ध्यान से देखेंगे ना, जितना भी मैंने पढ़ा है, आई कुड हैव मिस्ड सम पॉइंट, बट जितना भी मैंने पढ़ा है वो एक ही देवी है जो गंगा से भी निकली है और जिसका फॉर्मेशन जो है जो ट्रिनिटी ने मिलकर किया है, और सभी देवताओं ने उनको अपना आशीर्वाद भी दिया। नाउ द यूनिकनेस ऑफ दिस इज दैट ऑल द मेल गॉड्स हैव ओनली गिवन हर सम ऑफ द अदर वेपन। कोई भी किधर भी फीमेल का कंट्रीब्यूशन नहीं आता है, but all the male gods have to come together and then they bless her, they give her the best of weapons, और फिर वो जाके युद्ध करती है, और वो जो युद्ध होता है वो 9 दिन तक चलता है, 10वें दिन उनका वध कर देती है, और तब जाके उनका जो जन्म का जो पर्पस होता है वो फुलफिल हो जाता है। सो व्हेन यू लुक एट इट, दुर्गा मैया का जो सिग्निफिकेंस है, इट हैज टू डू मोर विद पावर, it has to do more with shakti, it has to do more with internal strength and will also, बिकॉज हो सकता है कि आपके पास नॉलेज हो सकता है आपके वेपन्स हो, पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जिगर भी चाहिए होता है, वो नॉलेज को या फिर वो स्किल को। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दुर्गा। तो आज की में डेटा एंड नॉलेज इज एक्सेसिबल, बट टू गेट इट फ्रॉम द राइट सोर्स, to make it your own and then implement the knowledge, that is where I find Durga fits in the today's scenario. But this is just I'm sure there'll be more questions and discussion that we'll have, so we'll take it right from there. Yeah, very beautiful, Rishi. Exactly as you said ki Durga could be resembling or symbolizing power, है ना? आज के युग में हम बोलते हैं कि knowledge is power, knowledge is power, वो सरस्वती है तो तुम तर जाओगे, बट समवेयर देयर इज अ वेरी थिन लाइन, और यू कैन से इनविजिबल लाइन, जो ये बोल रहा है कि वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो इनविजिबल है। करेक्ट। वो शक्ति हमें लानी पड़ेगी, देन योर नॉलेज इज अ पावर। ब्यूटिफुल। करेक्ट। With the same stream of thought, I have one more question, Rishi. Since, see, in my opinion, जो सनातन देवी देवता धर्म था, यहाँ पे बोला जाता है कि सनातन देवी देवता धर्म इज देवर निरअहंकारी, उन लोग में कोई अहंकार नहीं था। उनका जो परमो धर्म था वही ऐसा धर्म था कि इट इज निर्विकारी, निरअहंकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम लोग थे उन लोग, ओके, जिनमें कोई विकार नहीं है। बट व्हेन आई सी दुर्गा माँ, समवेयर आई फील दैट वो अहिंसा जैसा दिखता है मुझे, बिकॉज इट इज because she is on the wild lion, and somewhere she has this weapons which is gifted by God, but this weapons, again, according to my psychology, okay, for me weapon symbolizes ki it's for ahimsa. Correct. पर जबकि हमारे सनातन देवी देवता धर्म में बोला है कि जो देवी देवता थे वह उनका अहिंसा, ये हिंसा दिख रहा है, बट अहिंसा अपना परमो धर्म था कि we will not ever go into those things. Okay. Okay. So why this Durga Ma is on this wild lion, and of course I got your point that वो उनको गिफ्ट मिले हैं, so first I'd like हिंसा को शायद ब्रेक करने के लिए। हाँ, सबको ऐसा लगता है कि सनातन धर्म इज जो हमारी बुक्स है, जो हमारे वेदास है, जो हमारे पुराण है, या जो हमारी एपिक्स है, वो पीस है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारा अजम्पशन है। राम जी ने भी रावण का वध किया, कृष्ण ने भी शिशुपाल का वध किया, हिरण्यकश्यप उनका भी वध हुआ, शिव जी ने भी कई दानवों का वध किया।
परंतु वो कब करते हैं, पहले एक हम वो समझना चाहिए। सनातन धर्म इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पीसफुल हैं। सनातन धर्म टीचेस पीस, इट डज नॉट प्रीच वायलेंस। फर्स्ट लेट मी क्लैरिफाई दैट पॉइंट वेरी क्लियरली। it teaches that you should follow peace, but up to a certain point, you have to follow that peace. अगर कोई आपके घर में आके आपको मारेगा, कि आपकी बीवी बच्चों को उठाएगा, आपका वध करने जाएगा, तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ते हैं। अगर कोई इनजस्टिस कर रहा है तो उसका वध करने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ते हैं। दुर्गा माता ने क्यों उठाया वो? क्योंकि उनको दूसरी जगहों पे कोई जो महिषासुर थे वो दूसरे लोगों का वध कर रहे थे। सनातन धर्म ये सिखाता है कि तुम कभी मुठभेड़ मत करो, कभी झगड़ा मत करो, कभी वध मत करो, परंतु अगर इनजस्टिस हो रहा है तो तुम्हें शस्त्र उठाने पड़ेंगे। सी द बेसिक वन पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज कि भगवत गीता सब कहते हैं, and again I'm again repeating that light, that Sanatan Dharma preaches peace, because you'll have to understand the context I'm trying to explain over here. Bhagavad Gita Yes. preaches is a manual for life. युद्ध, भगवत गीता के पहले अर्जुन शस्त्र उठाना नहीं चाहता था, भगवत गीता के बाद वो शस्त्र उठाता है। But does Bhagavad Gita preach violence? Not at all. Bhagavad Gita is telling you to stand what is right for humanity. Not only for yourself, what is right for humanity. So over there now, that is, a lot of time people say कि Sanatan Dharma is peaceful. It is. I will not strike first. मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं वध नहीं करूंगा. But that does not give you the license that you come and you try to kill me or my family, or take away my sister or my wife or my mother, something like that. So at that time, everyone will stand and fight. So it is like we pay for your sins. Yes. We'll make you pay for your sins. So that is what Sanatan Dharma is. Now, सेकेंड कमिंग टू माँ दुर्गा, अगर आप माँ दुर्गा की फोटो अगर आप ध्यान से देखेंगे कभी, या कभी भी आप उनकी कोई मूर्ति देखेंगे ना, तो उसमें एक चीज बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी माँ दुर्गा की। तो माँ दुर्गा को अगर आप देखेंगे, हम लिपस्टिक लगाते हैं, वो साड़ी भी पहनती है, बहुत ब्यूटीफुल साड़ी पहनती है माँ दुर्गा, चूड़ियाँ पहनती हैं, उनके यहाँ पे तिलक भी लगा होता है, ज्वेलरी भी पहनती है माँ दुर्गा, बहुत अच्छी तरह हम उनको सजाते हैं। परंतु उनके जो बाल है ना, हमेशा खुले रहते हैं उनके बाल। उनके हाथ में शस्त्र भी है, अस्त्र भी है, और वो एक लायन के ऊपर भी बैठी है। वैसे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लायन है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में टाइगर है, तो जो भी है, बट वो बिग कैट ही आप मान के चलिए, तो वो उनको राइड करती है। अब इसका क्या पर्पस है? अगर आप इसको मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि माँ दुर्गा रिप्रेजेंट्स द 21st सेंचुरी गर्ल। इफ आई हैव टू पिक अप वन गॉडेस हु रिप्रेजेंट्स 21st सेंचुरी गर्ल, वो माँ दुर्गा ही है। आई विल टेक केयर ऑफ माई ब्यूटी, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मुझे सजना अच्छा लगता है, मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है, करेक्ट। और उनके फेस पे हमेशा स्माइल होती है। जब भी अगर आप कोई भी फोटो देखें ना, जहाँ पे वो महिषासुर का भी वध कर रहे हैं, उनके फेस पे हमेशा एक स्माइल होती है, वो हमेशा स्माइल करती है, मुस्कुराती है। नाउ जब तक आपने उनको अच्छी तरह रखा है, वो स्माइल कर रही है, परंतु अगर आपने वो लाइन क्रॉस कर दी, उनके टेम्पर को, आपने उनको चैलेंज किया, या आपने उनके परिवार में किसको दुख पहुंचाया, तो वो आप पे आक्रमण भी कर देगी। मैंने ना एक बहुत अच्छी एक लाइन सुनी थी, वो कंगना रनावत ने कही थी कि लॉट ऑफ टाइम पीपल टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, दैट वुमेन नीड्स टू बी एम्पावर्ड एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड देयर आर लॉट ऑफ टॉक, but that lady na explained it very beautifully. She said ke you all are blessed that we don't want any further empowerment. She said if you really want to know what women empowerment is ना, एक माँ से उसके बच्चे को बिना उसकी इच्छा के दूर करके देखो, वो माँ पूरी दुनिया को ऊपर नीचे कर देगी। तुम खुश नसीब हो कि मुझे एम्पावरमेंट की जरूरत है, मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में है। एंड आई थिंक इट वाज सच अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, एंड दैट इज व्हाट ओवर देयर इफ यू सी माँ दुर्गा इज ऑल अबाउट। वो क्यों आई? क्योंकि उनके बच्चों को, इंसानों को कष्ट पहुंच रहा था, तो उनका वध करने। तो अ लेडी टुडे इज डूइंग मल्टीटास्किंग, उनके 10 हाथ है। इनफैक्ट मैं कल परसों ही किससे बात कर रहा था कि मैंने लॉकडाउन में एक चीज सीखी है, व्हेन आई लुक एट माय मदर, व्हेन आई लुक एट माय सिस्टर इन लॉज, व्हेन आई लुक एट माय वाइफ, और मैंने एक चीज सीखी है कि ऑनेस्टली आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी जेंडर डिबेट, बट हम आदमी लोग कुछ नहीं करते हैं, वी कांट इवन कंपेयर। वो सुबह उठते हैं, खाना भी बनाते हैं, बच्चों को तैयार भी करते हैं, स्कूल के भी साथ में बैठते हैं, उनका होमवर्क भी कराते हैं, बाद में अपने काम भी करते हैं, वो फिर घर के भी काम करते हैं, मेड से काम कराते हैं, फिर खाना बनाते हैं, मतलब। और हम लोग आदमी लोग मतलब थोड़ा काम करते थक जाते हैं, पैर फैला के बैठ जाते हैं, एंड द वुमेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग, एंड आई थिंक दैट मल्टी talent or the multifaceted job that is done only by a woman. So therefore I said that Ma Durga represents the 21st century girl. I'm very I'm at peace, okay, but in case
You do anything to my family now, you will never ever see a more fearful person than me. And I think that stands for every girl on this planet. Yes, correct. So it's like then Durga within you. Durga within me, Durga within me. So we all have Devi Devta Shaktis, but as you said, so now it means Sanatan Devi Devta Dharma हमें ये बोलता है कि yes अपना ahimsa is our parmo dharam, but when it comes to injustice or when it comes to protecting your tribe, your family, you don't have to think twice. Correct, you have to stand for yourself ना, you have to stand. और ये हमारे हर किताब में लिखा है. मतलब कोई अगर कहता है ना कि सनातन धर्म में वायलेंस नहीं है, तो मैंने ऑनेस्टली किया, तुम्हारा सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, यू नॉट रेड एंड यू नॉट अंडरस्टूड सनातन धर्म एट ऑल, सो अप टू सर्टेन पॉइंट, बट देन यू हैव टू डू इट. और हर एक में होता है, भले वो माँ पार्वती हो या माँ दुर्गा हो या माँ काली हो, पहले वो हमेशा फॉरगिव करते हैं. कृष्ण भी हो सकते हैं, शिशुपाल के वध में पहले उन्होंने शिशुपाल को 100 बार माफ किया, 100 गलतियां माफ की, फिर कहा कि अब तो रुक जा, अगर नहीं रुका तो अब मैं तेरा वध कर दूंगा. तो सनातन धर्म में ये हमेशा है. राम जी भी जब जाते हैं तो रावण को कहते सीता को लौटा दो. अब तुमने सीता को नहीं लौटाया तो मुझे वध करना पड़ेगा. कृष्ण भी जाते हैं महाभारत में दुर्योधन के पास जाके 5 गांव दे दो, अब नहीं दोगे तब जाके धर्म युद्ध होगा. तो हमेशा मौका दिया जाता है पीस का. बट व्हेन द अदर पर्सन कीप्स ऑन रिजेक्टिंग, दैट इज द मोमेंट यू हैव टू पिक अप वेपन्स. True. Yes. Very deep. One more point. Sorry, I'd like to add, जो भी आपने पहले कहा था ना, तो इसमें जो हमने बात की ना, टेक्निकल स्किल्स तो होते हैं, परंतु आपको इनर विल, इनर शक्ति चाहिए होती है. अभी मुझे बात करते करते स्ट्राइक हुआ, अर्जुन को भी जब उनके पास इंद्र का वध होता है, जब उनके इंद्र के जो उन्हें वेपन्स मिलते हैं, भगवान महादेव उन्हें अपने वेपन्स देते हैं ना, फिर भी युद्ध के पहले है ना, कृष्ण उन्हें कहते हैं माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेके जा, तब तू युद्ध जीत पाएगा. और अर्जुन जो है माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद प्राप्त करते युद्ध के पहले. मतलब उनके पास शस्त्र सब है, उनके जो सारथी है कृष्ण है, परंतु कृष्ण खुद कहते हैं माँ दुर्गा का तो आशीर्वाद ले ले, वरना तू जीतेगा कैसे ये युद्ध. और तब जाके उनको शक्ति मिलती है. Awesome. This was hidden. I was not aware of this. Yes. Absolutely. So Rishi, is there any way through which we can evoke those divine qualities? Because see, somewhere I believe कि हम भी तो उनकी ही संतान है ना. तो अगर हम उनकी संतान है तो उनकी कुछ तो बीज हमारे अंदर भी तो होंगे ना, राइट? सो आई फील कि अगर दुर्गा मेरी माँ है तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म में अंश होंगे जो मैं भूल गई हूँ इन दिस वर्ल्ड. इज देयर एनी वे थ्रू विच आई कैन इन्वोक दोज डिविनिटी और दोज डिवाइन पावर्स for my life, in my life, for my life growth, or to serve the society for a larger perspective? Possible? Correct, 100%. And as you rightly said, so beautifully you said that the Durga Mata का जो है, हम उन्हीं के पुत्र हैं, हम उन्हीं के संतान है. जो भी देवी देवता है, भगवान, हम उन्हीं के बच्चे, तो उनका जो है अंश हमारे अंदर ही है. इसके लिए अहम ब्रह्मास्मि को बहुत ज्यादा सनातन धर्म में माना जाता है कि हमारे अंदर भी भगवान है, हम ही एनर्जी है, आपके अंदर भी है, और हम सबके अंदर भगवान देखते हैं. अब नाउ कमिंग टू स्पेसिफिकली टू दुर्गा माता. ओके, अभी अगर आप इसको एक कॉन्टेक्स्ट वाइज समझने की कोशिश कीजिए कि एक दुर्गा माता का जन्म कब होता है, जब एक पर्पस था उनके जन्म का. और उनका पर्पस क्या था कि उन्हें एक असुर को वध करना है. तो उनके पास एक पर्पस है. सेकेंड, बिफोर शी कुड गो फॉर द एग्जीक्यूशन, okay, she got all the necessary equipments that were required. She did competitive analysis also कि उसका कैसे वध करना है, कौन उनसे हार चुका है, मुझे कौन से अस्त्र शस्त्र लगेगी, कौन सा ज्ञान लगेगा, कौन सी विद्या मिलेगी. करेक्ट. फिर उन्होंने लायन के ऊपर और टाइगर के ऊपर क्यों बैठते, बिकॉज ओवर देयर शी ट्राई टू कंट्रोल द डिजायर, द बीस्ट, the violent energy that an animal would have. उन्होंने उनको भी कंट्रोल कर लिया. अब उसमें एक और चीज आती है कि उनके जो 10 हाथ होते हैं ना, उनका जो एक हाथ होता है ना, यूजुअली उसके अंदर कभी त्रिशूल दिखाया जाता है,
कभी कोई मूर्ति में आशीर्वाद दे रहे होते हैं, कभी कोई फोटो में मूर्ति में देखो उनके हाथ में स्नेक होता है। ओके, अब वो जो स्नेक होता है उसका क्या मतलब है कि उनके कॉन्शियस लेवल इज वेरी हाई, बिकॉज स्नेक तो कभी भी बाइट कर सकता है, तो उनके सेंसेस का कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है उनका। अब दुर्गा हमारे अंदर कब जागती है? जब, if I take it as a entire context as a metaphor, the moment once I have control over my senses, okay, second I have a purpose in life, third I am ready to learn and learn all the technical skills that are required, all the qualities that are required for me to achieve the fulfill the purpose or achieve the goal that I have. And more than one of the most important, the willingness to execute the task, knowing that many big gods have failed. तो मुझसे पहले भी किन लोगों ने किया होगा, मुझसे बड़े हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, पर मेरे अंदर वो विलिंगनेस है उसको एग्जीक्यूट करना। So first, I think the purpose should be very clear what you want to do. Second, learn as much as you can, get yourself equipped with all the technical skills and all. Third, do the competitive analysis very clearly, or look at your weaknesses or what is the strength of the opponent. And fourth, have the willingness and back yourself, your skill, your and the belief that you can do it, even if others have failed. I think ये चार qualities अगर एक में आ जाती है ना, तो automatically Durga, is there within me, and the willingness and the strength I will get. Wow, beautiful, Rishi Nanda. So, ladies, if you missed, just make a note of it. In order to invoke those divine powers within you, because see, Durga resembles power, and we have those powers within us, because somewhere we are coming from that Devi. We are coming from that lineage, okay? If you have that belief system that we are the kids and the children of that Devi Devta Dharma. Now, if I want to become like my mother, I have to be fully conscious. जैसे ऋषि नंदा जी ने बताया कि अगर तुम्हारे पास नाग है तो नाग से डर नहीं जाना, यू हैव टू बी कॉन्शियस कि वो कैसे हिले वैसे तुम हिले, करेक्ट? So you have that consciousness, that awareness. Second, you should know that where you want to put your consciousness, what purpose you want to fill with that consciousness. And third, be ready to learn from everyone, even if those seniors are ahead of you in the game, और even if they have failed their, बोलते ना कि उनके सक्सेस हमेशा अपने फुटप्रिंट्स छोड़ के जाती है, तो you have to understand from their learnings, their mistakes, their experiences, and then you can win the game of human life with this power within you. Correct? Correct. Very nice. Summarized it in simple words. Okay. So before ending this sessions, guys, we have already covered what is the significance of Durga Ma, how to invoke those powers within you. It was very deep. Rishi Nanda, it was an eye-opening session for me. Yeah, it was very eye-opening, and some concepts which was misinterpreted by me, or maybe not misinterpreted, but it was lost in that game of words. You cleared that. And somewhere I have that satisfaction that, okay, my few concepts are cleared now. And that's why, it's very, it's a wise saying that always, if you are in a doubt, ask an expert rather than, just hanging around with those silly questions. Okay. So, give me 2 minutes, Rishi. Audience, ladies, my beautiful, girls out there, just put some comments on what are your intakes, what are your inputs from this particular session, and also let us know how did you find this session, what all other topics you would like us to explore. And Rishi Nanda, thank you so much for being with us on this Sunday evening, having this conversation on Durga within us. And I'm sure that we are going to have many conversations in the future. Thank you. And Daily Mataji, looking forward to it. Bye. Thank you. And yeah, last point. I am going to put all his handles in the description. So do check out and please comment what are your learnings from this particular session, and also let us know what all other sessions you would like to hear from us.